बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। श्रुति यानी कि सुना हुआ, ईश्वर की वो वाणी जो सुनी जाती है। कृष्ण अपना परिचय देते हुए अर्जुन से कह रहे हैं, गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्साम हूं। बृहत्साम का मतलब होता है ऐसा गायन जो स्वर्ग लोक श्रेष्ठत्व, मन और तेज को स्वर आलाप से व्यंजित करता हो, यानी कि वो सबसे बड़ा गायन जो ऋचाओं में स्वर प्रधान है। छंदों में गायत्री छंद हूं, यानी कि गायत्री महामंत्र, तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत भी मैं ही हूं। भगवान श्री कृष्ण जैसे गायत्री मंत्र को अपनी विभूति बताते हैं और सूचित करते हैं कि सर्व मंत्रों में गायत्री मंत्र मेरी विभूति है, ऐसे ही वेद उपनिषद का सार है भागवत जी। बड़े सौभाग्य से कथा जी श्रवण करने का सुयोग प्राप्त होता है, और उसमें भी जब उसके वक्ता निष्काम और निस्वार्थ कोई व्रजवासी के श्रीमुख से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होवे तो उसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। माँ गायत्री जी और गुरुजन की असीम कृपा से वो सौभाग्य हम सबको प्राप्त होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तारीख 7 से लेकर 13 तक श्री मुल्लिका जी के श्रीमुख से कथा श्रवण करने का और पूज्य पंडित बाबा के आशीर्वचन और श्री राधिकेश जी के रसिया गान का सत्संग कथा यज्ञ का हम सब रसपान करें और अपना जीवन गुरु भक्ति में समर्पित करके अपने को धन्य बनावे। Here is some video clipping. Vrindavan, Srimati Radharani, who eternally resides in its charming forests with her dearmost Sakhis, always engaged in loving pastimes with her eternal consort, Lord Krishna. For instance, with an aim to serve the mother cows, Baba Shri started Mataji Gaushala in the year 2007 with a handful of them. It has just been 11 years and the number soars to over 60,000. Yes, the biggest cow shelter of the world, which nurses over 60,000 cows in the most affectionate motherly way, exists in Barsana. Krishna. आप लोग देखेंगे यहाँ इस गौशाला में वास्तव में गौ सेवा कैसे की जाती है। जब तक गाय के प्रति एक पशु भाव रहेगा या जब तक एक सामान्य जीव का भाव भी रहेगा, तब तक सेवा भाव की सिद्धि नहीं होगी। तो गाय के प्रति पहले तो एक मातृभाव स्थापित किया जाए। मातृभाव जब उसके प्रति रहेगा तो पूज्य भाव आएगा, एक आदर की भावना हृदय में स्वयमेव आएगी। और माताजी गौशाला में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ की जो भी कुछ समृद्धि है, यहाँ का जो भी कुछ वैभव है, उसमें प्रधानता है भावना की। Sri Radharani annual Braj Yatra in the year 1988, the annual pilgrimage of the 84 coast region of Braj Bhumi. The Yatra witnesses participation of over 15,000 devotees from different parts of the world who soak themselves in the munificent dust, walk, dance, feast and chant endlessly for 40 days, meanwhile absorbing the blessings of Dham with love and devotion. The Yatra conducted is entirely free of cost, which covers all the expenses of food, camp stays, medical, etc. of each and every devotee for the total period of 40 days. The sight of thousands of pilgrims meandering through the fields just like the river Yamuna is a treat to the eyes of the viewers. And so is the soulful, rhythmic, devotional rasa dance of the gopis at Ras Mandap. Nitya Aradhana, as it is called, or Rasotsav Sankirtan, the powerhouse and the cause of all the mercy flowing through this Seva Sansthan. Every day in the evening at 6 p.m.,
the Sadhvis gather at the foothills of Mangad at Rasmandap and dance to the holy names of the Lord with unflinching faith and devout absorption. The divine sight gives a glimpse of the Rasamandal of the Gopis and Lord Krishna. Followed by Baba Shree's short satsang, the mellows of Brajras in form of Rasiya songs and Leelas floods the scene with Krishna Prem when the hundreds of eyewitnesses are awe-stricken with splendor, while the walls echo the Jaikaras of the Queen of Barsana. The driving strength of the devotees here is the absolute surrenderance unto the Lord, His unalloyed bhakti and constant chanting of the names of Sri Radha Krishna. Thousands of people come to relish the free prasadam seva at Sri Radha Ras Mandir every single day. The children of Didiji Gurukul at Man Mandir have held the flag of Nagar Sankirtan very high. Every morning they would carry forward their Nitya Naam seva in form of Barsana Parikrama, singing the names of the Lord. ये जोगी जी आ रहे हैं, इनसे कुछ कहिए आप। हमने कहा हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने अनुभव किया। आज 65 साल हो गए, एक पैसा मांगना नहीं पड़ा। 20 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च है दैनिक का, कहीं भी मांगना नहीं पड़ा। ये वही पूरा कर रही हैं राधा रानी। मैं क्या कहूँगा किसी से, इतना अवश्य कहूँगा कि हर्षवर्धन के समय में 6वीं 7वीं शताब्दी में आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार गो संरक्षण और संवर्धन के लिए भरपूर सहयोग आप सबको करेगी। अपनी सामर्थ्य के अनुसार लगे हैं। हमारे में कोई गौ सेवा की सामर्थ्य नहीं है, क्यों समाज, सारे समाज को हम जगा नहीं सकते हैं। तो हमने विचार किया 2-4 गाय हम रख लें, खुद करें। तो उसमें प्रभु ने सफलता दिया, 55,000 गायें हो गई हैं। और ये सब प्रभु ने किया है। हमारे संस्कृत भारती उत्तर अमेरिका संस्कृतेन वीडियो लघुचित्र निर्माणस्य स्पर्धायाः आयोजनं करोति इति अत्यन्तं हर्षस्य विषयः। अहं भवतां हार्दिकम् अभिनन्दनं करोमि। आई मुरली के सूत्र दे। भवती अत्र कथम्? वृष्टेः पूर्वं वृक्षारोपणं कर्तुम् इच्छामः। अति उत्तमम्। भवत्याः संस्था किं करोति? अस्माकं संस्था संस्कृतभारती तु देववाण्या संस्कृतभाषाया प्रचारं करोति। अत्युत्तमम् अत्युत्तमम्। भवत्याः तस्य मातरः इत्यस्य सर्वश्रेष्ठः प्रतिष्ठापकः अस्माकं परमाराध्यः श्रीकृष्णः आसीत्, यः गोमातृभ्यः भगवतः गोपालः गोविन्दश्च जातः। परमगोभक्ताः ब्रजवासिनः तु वृषभस्वरूपेण आगतस्य अरिष्टासुरस्य वधे कृते सति साक्षात् भगवन्तं श्रीकृष्णम् अपि बहिष्कुर्वन्ति। तासां गोमातॄणां महिम्नः वर्णनम् अन्यः को वा कर्तुमर्हति। सुखदां शुभदां अमृतमयपयप्रदां मातरं वन्दे गोमातरम्। आर्यभूमि धर्मभूमि कर्मभूमि शर्मभूमि गोसंस्कृति शोभनां मातरं वन्दे गोमातरम्। वृन्दावन यमुना तट गोवर्धन वर्षि
गोकुल सेवा पराम। वासी मान मंदिर वासिनी मुरलिका शर्मा जी अब से कुछ दिन पहले न्यू जर्सी में थी। अपने स्टूडियो में हमने उन्हें आमंत्रित कर भागवत व अन्य पहलुओं पर चर्चा की। मुरलिका शर्मा जी, TVH में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपसे और काफ़ी मैं कहूँगा कि प्रभावित हूँ ये जानकर कि आप के पिछले काफ़ी समय से जो है भागवत कथा का अध्ययन कर रहे हैं। हमें ये बताइए कि किस उम्र में आप भागवत की ओर आकर्षित हुई और किस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ कि आप देश विदेश में हैं जो है भागवत का प्रचार कर रही हैं। वैसे तो हमें जन्म से ही भक्तिमय वातावरण मिला है, लेकिन जब मैं 10 वर्ष की थी तो मैंने ये कथा कहना आरंभ किया अपने गुरु महाराज की प्रेरणा से और उनकी आज्ञा से, और उन्हीं के सानिध्य में मुझे ये सब करना और ये सब मुझे सीखने को मिला। क्या लगता है कि बच्चे और युवा वर्ग जो है भागवत की ओर उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या करना चाहिए? मैं ये सोच रही थी काफ़ी समय से, तो उसके लिए मुझे एक बात समझ में आई कि हम लोगों ने यहाँ आने के बाद देखा कि यहाँ जो भक्त परिवार हैं उनके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो वो लोग प्रारंभ से बच्चों को सिखाते हैं भक्ति करना, लेकिन जब वो लोग कॉलेजेस में जाते हैं तो उसके बाद उनकी जो भक्ति के संस्कार होते हैं वो दब जाते हैं। और आज के जो भौतिक संस्कार हैं जो काम की ओर आपको प्रदान करते हैं या आपको अर्थ की ओर अग्रसर करते हैं, वो संस्कार बच्चों के अंदर और युवा पीढ़ी के अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं जी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि चूँकि भारतीय संस्कृति ही नहीं, संपूर्ण विश्व की संस्कृति का जो मुख्य आधार है वो है धर्म, वो है भक्ति, कृष्ण भक्ति। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी विद्यालयों में किसी अंश में अगर आप 6 घंटे बाकी पढ़ाई पढ़ाते हो तो 15 मिनट भक्ति की शिक्षा के लिए भी देना चाहिए, जिससे आज की युवा पीढ़ी को पता चले कि हम लोगों का मूल क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या होना चाहिए। और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री श्री रमेश बाबा जी महाराज, उनकी प्रेरणा से और उनके कहना चाहिए निर्देशन में हम लोग निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से और अपने भारतीय संस्कृति, अपने अध्यात्म को, अपने संस्कारों को जगह जगह लोगों को वितरण कर रहे हैं, न कि बेच रहे हैं। कि जैसा कि आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई, धर्म को लोग बहुत व्यवसाय की दृष्टि से देखने लगे हैं, जो एक हमारे धर्म के लिए बहुत बड़ी हानि है, धार्मिक लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है। तो ऐसे समय में हमारे पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज के द्वारा बहुत से अच्छे प्रचारक तैयार किए गए हैं जो पूरी दुनिया भर में घूमते हैं। जब भी किसी प्रचारक की बात चलती है तो हमारे सामने जो चेहरा बनता है वो एक मैं कह सकता हूँ कि बड़े या बुज़ुर्ग इंसान की शक्ल सामने आती है। आप इतनी छोटी आयु में धर्म प्रचार के साथ धर्म के कामों में कैसे लग गई? मुझे कृपया आप अपने बारे में बताएंगी कि आपका बचपन कैसा है, आपकी इंट्रोडक्शन क्या है, आपको जो मन में जितनी भी प्रचार करने की उत्सुकता कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, किन लोगों से प्रभावित हैं आप? स्वाभाविक है कि हमारे जो घर है हमारा ब्रजभूमि में, हम लोग ब्रजवासी हैं, पैदाइशी ब्रजवासी हैं। तो हमारे पूज्य ताऊ जी भी हमारे साथ आए हैं, पंडित श्री डॉक्टर रामजी लाल शास्त्री जी, मेरा छोटा भाई है राधिकेश जी। हमारा सारा परिवार ही एक तरह से अध्यात्म को समर्पित है। इस भक्ति मार्ग में शुरू से हम लोग चल रहे हैं। हमारे पूज्य ताऊ जी स्वयं 1500 कथाओं से ज़्यादा कार्यक्रम कर चुके हैं देश विदेश। पिछले 20 साल से वो अमेरिका आ रहे हैं। हम सब लोग मांगता है, मांगते हैं, दाता रहे हैं तो ब्रजवासी रहे हैं, कृष्ण को भी देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। माता यशोदा आशीर्वाद देती हैं, ब्रज गोपियां उनके मंगल की कामना करती हैं और उनसे कुछ नहीं चाहती। यही वास्तव में प्रेम है। लव इज नॉट गेटिंग बट गिविंग। प्रेम में लिया नहीं जाता है, प्रेम में दिया जाता है। जो जितना बड़ा प्रेमी है वो उतना ही बड़ा दाता है। उसी भाव का ये रसिया है कि कृष्ण एक दिन सांकरी गली में गोपियों को मिल गए अपने ग्वाल बालों के साथ में और उनसे दूध दही का दान
जो था वो मांगने लगे। आज मिल गई गली सकरिया में गोरी घूंघट वारी। आज मिल गई गली सकरिया में गोरी घूंघट वाली। आज मिल गई गली सकरिया में ओ गोरी घूंघट वारी। आज मिल गई। तो एक तो घर में ये माहौल मिला, फिर कुछ पूर्व जन्म के संस्कार भी होते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो हम अनुभव कर सकते हैं वो एक संत की कृपा, एक महापुरुष की कृपा, जो हमें बचपन से मेरे जन्म से पहले से हमारा पूरा घर ही हमारे पूज्य गुरुदेव को समर्पित रहा है। तो पिछले 65 वर्ष से वो वहाँ रह ही रहे हैं, तो हमारा जन्म ही उनके सानिध्य में हुआ बचपन से, क्योंकि एक एनवायरनमेंट ऐसा मिला, माहौल मिला। तो बचपन से जब मैं 10 वर्ष की थी तब से कथा कहना आरंभ किया, क्योंकि वही कथा सुनना, कीर्तन करना घर में और सब जगह वही वातावरण एक मिलता रहा। और चूँकि इस समय आज के युवाओं को बहुत आवश्यकता है धर्म की ओर, अध्यात्म की ओर खींचने की, तो अगर हम जैसे उम्र के लोग अगर प्रचारक होंगे तो समवयस्क लोगों को देख के बच्चों के मन में भी एक प्रेरणा होती है और एक प्रभाव पड़ता है कि वस्तुतः धर्म केवल जिनके बाल सफ़ेद हो गए या जो अपनी आयु अब समाप्ति की ओर ढाल चुके हैं उन्हीं के लिए नहीं है, बल्कि प्रहलाद जी के अनुसार तो दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यत ध्रुवम अर्थदम, ये जीवन मिला ही अध्यात्म के लिए है। तो बचपन से ही कोई व्यक्ति अगर जुड़ जाता है तो मतलब उसने एक बहुत बड़ी उपलब्धि वास्तविक जीवन की प्राप्त कर ली है। जी देखिए, मैं अपने पे ध्यान डालूं जहाँ बाकी जो आसपास लोग हैं, तो युवा अवस्था जब होती है उसमें सबका मन तो ये करता है कि हम भी घूमें जाएं, नए नए वस्त्र पहने, नई नई चीज़ें देखें, फिल्में देखें। और आप इस अवस्था में अपने आप को कैसे फील करते हो? आपका मन नहीं करता कि आप भी दूसरे लोगों की तरह इधर उधर घूमें और जो दुनिया की बाकी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ें हैं उनमें भी ध्यान? अधिमाने भीतर, आत्माने स्वयं को देखो। आत्मनिरीक्षण का नाम ही अध्यात्म है। अपने आप को पहचानो, ये जीवन किस लिए मिला है, इन्हीं सब विनाशकारी कार्यों के लिए। तो अध्यात्म जब शिक्षा से जुड़ जाएगा और शिक्षा जब बहुत स्वच्छ हो जाएगी तो निश्चित है कि चरित्र भी स्वच्छ होगा, मानसिकताएं भी स्वच्छ होंगी, विचारधाराएं भी स्वच्छ होंगी। जी, अंत में आप क्या संदेश देना चाहोगे टाइम्स ऑफ कनाडा के व्यूअर्स को, और मान मंदिर के बारे में आप इन्फॉर्मेशन दें। अगर लोग भारत जाएं तो वो बरसाना जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं, वहाँ रहने की क्या व्यवस्था है, मिलने की क्या व्यवस्था है, कैसे कैसे कार्यक्रम? हम बस यही कहना चाहेंगे कि सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे श्री मान मंदिर बरसाना धाम में, और आप लोग कभी भी समय निकालिए, कभी भी आइए, क्योंकि इस समय देश का गौरव माताजी गौशाला के रूप में वहाँ विद्यमान है। तो वो निश्चित रूप से एक बहुत दर्शनीय स्थान है, आप दर्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ दिल्ली एयरपोर्ट से जो भी आना चाहेंगे उनको वहाँ से ले भी लिया जाएगा, और सब व्यवस्थाएं वहाँ पे रहने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है, अच्छी तो सुविधानुकूल भी है। तो आप लोग कभी भी आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। जी, तो मैं टाइम्स ऑफ कनाडा की तरफ से ब्रिज बालिका मुरलिका शर्मा जी का हमारे ऑफिस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राधे राधे। जय श्री राधे।